SDPI जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो जिंदाबाद SDPI जिंदाबाद ಬಂಡಿ ಕೊಡದಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಂಘಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತಿನ ತೂಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸಕ ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಷಿಸಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬುದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ SDPI ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನದು, ಚೈನು ಫ್ಯಾಷಿಸಂ ಮತ್ತು BJP ಅವರದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ 92% ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 140 ಸೀಟಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ 1,20,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರಣಭೂತರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಣಿಗಾಗ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ತಾವು ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅಂತೇಳಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಆ ಮತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮತಂದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಷಿಸಂ ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿ, ಅವ್ರ ಕೋಮವಾದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೆಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಕ್ಬರ್ ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋಂಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी के एक MLA जो श्रीरंगपट्टन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा है, उस MLA ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कहता है कि अगर तुम गवर्नमेंट की ज़मीन मुसलमानों को देते हो तो मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा। तो मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस सेकुलर बोल कर मुसलमानों के वोट लेती है और लेकर मुसलमानों के वोटों के रहम व करम पर कर्नाटक में गवर्नमेंट बनाई है। अब ये सब जो कांग्रेस लीडर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये कहाँ हैं और इसका जवाब उस MLA से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और मैं ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ और आम लोग भी ये समझें कि अब वक्त बदलाव का आ गया है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे कर्नाटक के हालात UP, मध्य प्रदेश, आसाम से भी खतरनाक हो जाएंगे। हमें इस पार्टी की बजाय और
दूसरा हमें इंतज़ाम खुद कर लेना चाहिए। ये बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये समझती है कि कर्नाटक में कोई अब स्टेट पार्टी बाकी नहीं रही, तो हम जो चाहे किसी भी कौम के खिलाफ बोले तो ये खामोश रहेंगे। तो मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ कि तुम जो भी करना चाहते हो करो, इस बात को याद रखो कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI आपके लिए मैदान में तैयार रहेगी। इस बात को याद रखना। ये बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर, अमीर मुकामी जमात इस्लामी। ये जो हमारे श्रीरंगापट्टनम के MLA साहब ने जो हरकत की है, जिस तरह का स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनसे इस बात का तकाजा करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें और फौरी एक्शन लें। ये मुनासिब बात नहीं है। आप एक माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। तो हम इसकी जोर मुखालिफत करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की, इसको फौरी जो है एक्शन ले इस पर और उनको डिसमिस करें, जो करना है करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जानते हैं 2 दिन पहले कांग्रेस के एक अपने आप को सेक्युलर कहने वाले MLA रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने वहाँ के तहसीलदार को एक वार्निंग दी, अगर ये गवर्नमेंट की जगह मुसलमानों को करे तो उसको फांसी लटका दूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन सेक्युलर कांग्रेस के लीडरों से, जब आपके नेशनल प्रेसिडेंट, आपके नेशनल लीडर कहे हैं कि कांग्रेस के अंदर RSS की सोच रखने वाले मौजूद है, उसके बावजूद भी इन लोगों को आप खुली छूट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आज ओपन ये लोग वीडियोस में क्लियर नज़र आ रहा है कि इस तरीके के जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंदाज स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया। और कल जब SDPI पूरे रियासत में कर्नाटका में रोडों पे उतर कर इसके खिलाफ एहतजाज करी, तो ये है ना माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से ये गलती हो गई बोलते हैं, और बोलता है ये मेरी ज़बान से निकल गया, ये हम अपनी भाषा में बोलता है, ये हमारा कल्चर से निकल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप गाली दे रहे हो और कल सारी बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्या ये कॉमन हो गया है आज गाली देना और कल माफ़ी मांगना? ये माफ़ी मांगने से ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा। हम कहना चाहते हैं यहाँ के सिद्धरामैया जी से, अगर आपकी पार्टी सेक्युलर है तो इनको फौरी तौर पे इनका डिसमिस करना चाहिए और असेंबली में इसकी कोई जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जहन रखने वाले जो मुसलमानों के वोट तो लेते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, लेकिन अपना जो RSS का एजेंडा है वो आगे पावर में आने के बाद करते हैं। इन लोगों को सिर्फ माफ़ी मांगने से वो जो गलती किया है उसका पूरा नहीं होगा। इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके इसको जो है डिसमिस करना बोल के आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी है। मैं इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर इन चीज़ों को ये जो नफरत की सियासत कर रहे हैं सेकुलर पार्टियों में रह के, इन चीज़ों को अगर रोक नहीं लगाए, आने वाले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो या फिर TP-ZP इलेक्शन हो, उसमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए SDPI हमेशा आगे रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे बात करने का मौका दिया, शुक्रिया।